We have with us Hima Star, and he's such a star that he has cracked SAP three times, right? And he had come initially for the first before his first attempt, and after that he cracked his SSB, and unfortunately got married out. And today, that is last month on, he cracked his SSB for TGC 141 from 11 SSB, and yesterday the merit has come, and he's All India ranking 3 in the merit, and heartiest congratulations to so, without without further ado, I like Sarthak to first introduce himself to the class and thereafter tell us his method of preparation and then also share with us your SSB experience. So from there, that they will learn a lot of points. How do you tackle SSB, right? So starting with your introduction, follow it up with your method of preparation and then share your SSB experience in a short span, whatever you can share with us. So, hello everyone, good evening. My name is Sarthak Vaswani. I belong to district Bulandshahr. It is about 40-45 kilometers from here. And I did my schooling from Delhi Public School, Bulandshahr, and I was a mediocre in my school days. Thereafter, I pursued BTech in Computer Science Engineering from Graphic Era University, Dehradun, and in which I scored a good mark, so that's why I got a letter for TGC 141 to appear for the SSBs. So this is my third recommendation, and currently I am working as a software engineer in Global Logic, which is a Hitachi Group company. So it is near Advant only. So I work in Noida itself. So it's been now 1.5 years that I'm working there, and with this I prepared again for the SSB, and this was my third attempt. In my first attempt I got merit out, second attempt I got medical out, and this is my third attempt. So, and yes, I got, as sir said, I got AIR 3 this time. Last time also I got AIR 5, but I got medical out. So, yes, this was it. And as far as Preparation. yes, so as far as my preparation is concerned, so I did NCC, IMC certificate holder with A grade, and I did RDC as well. So that was the genesis of everything. As in, that was a, like, as we say that, what is that starting point? So NCC was the starting point. You must be shocked to know that Sandeep sir was my commanding officer, and and like since childhood I am with him. Like when I was in class 8, so at that time I was 14 or 15 years old when I am with him. So he insisted me to go for CATC camps. Then he asked me that you have caliber, you must go for best cadets. So I went for best cadets as well, and I stood seventh in All India best cadets as well in RDC. So as I was JT, so I was not able to do that RD parade क्योंकि मैं JT था. But yes, PM rally में तो I took part. तो जो मेरे जेनेसिस हैं वो तो संदीप सर ही हैं, मतलब जो इस चीज़ से आए. फिर उसके बाद देन आई डिड माई B सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेम बटालियन एंड C फ्रॉम द सेम बटालियन. देर आफ्टर एक स्टोरी है. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा एनडीए नहीं निकला था. मैं स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में. तो मैं स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सब में था. लाइक मैं फुटबॉल का कैप्टन था स्कूल में. फिर आई वॉज दी हेड बॉय, आई वॉज दी वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन क्लास 11. आरडी वारडी कर ली थी तो सब ठीक था. तो डिबेट में था, बीम उन में था. सो आई वॉज अ गुड इन टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. द ओनली थिंग इज कि मैं पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान देता था, इसलिए मार्क्स मेरे इतने अच्छे नहीं आते थे. देन देयर आफ्टर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मैंने सोच लिया था कि बीटेक में तो अच्छे नंबर लाने हैं. जो करना था सब कर लिया 12th तक. अब उसके बाद जो सीखना था वो मैंने सीख लिया. सो नाउ आई एम गोना वर्क ऑन माई स्टडीज़ बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी. तो उसमें फिर गया. तो वहाँ ठीक ठाक नंबर आए. तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, संदीप सर का कॉल आता है मेरे पास शाम को. मैं कॉलेज से निकल रहा था 6 साढ़े 6 बजे. संदीप सर कहते हो ये मास स्टार्ट हुआ है और आ जा जल्दी. मैंने कहा सॉरी सर, मैं सर अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, अभी कोई एंट्री भी नहीं है, एनडी भी निकल गया, कुछ भी नहीं है. अरे तो कोचिंग लेके वो कर अपनी तैयारी करता रहे एसएसबी की 4 साल. मैंने कहा सर 4 साल क्या करूँगा मैं. तो कहते कि चल कोई नहीं, कहाँ पे है. फिर उन्होंने सब चीज़ें पूछी. फिर ही वी वर इन टच विद ईच अदर थ्रू व्हाट्सएप. उसके बाद जब मैं था अपने 7th सेमेस्टर में, तो संदीप सर से मेरी बात है कि सर मेरा हो गया है सर, पहला अटेम्प्ट आने वाला है, तो अब क्या करना है बताइए. तो कहते कि आ जा तू यहाँ पे आ जा एमास में. मैंने कहा ठीक है सर. मैं आ गया 2022 अक्टूबर में. तो आई वॉज बल्कि आई वॉज 95 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैं आ गया, मैं जिम वगैरह करता था.
तो मैं आ गया तो संदीप सर कहते कि भाई कि तूने क्या हालत बना रखी है अपनी, इतना मोटा हो गया है वो, पहले तो अपने को पतला कर। और फिर वो मतलब हमेशा पतले पे बोलते रहते हैं। तो फिर उसके बाद संदीप सर ने एमपी सर आए अंदर से निकल के, मैं डर गया। मतलब पर्सनैलिटी ऐसी लगती थी कि मतलब डर सा लगता था देख के। तो फिर सर ने मेरे को उस दिन ना एक बुक दी थी, जो सर की जो फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट वाला जो एडिशन है वो दिया था मेरे को। अब तो उसका पार्ट 2 भी आ गया, मैंने देखा, कॉन्ग्रेचुलेसन सर उसके लिए। तो अब मैंने वो बुक ली। तो सर ने थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह दी थी कैसे करंट अफेयर्स वगैरह कर, मुझे एसएसबी का एस भी नहीं पता था। वो सर के पास अगर मेरी पीपीडीटी 1 पड़ी होगी जो फर्स्ट डे आप सब लोग लिखते हो ना, तो वो मेरी देख लेना आप लोग, मतलब आपको लगेगा कि बेवकूफ़ बनाते हैं सबकी, ले आते हैं रैंकिंग वगैरह, पर इनको आता है सब कुछ। बट कुछ नहीं आता था। एसएसबी का एस भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। आया था यहीं बैठा था सेकंड सीट पे ऐसी, उस वक्त तो नीचे क्लास होती थी। तो आया सर ने बोला ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें पीपीटी लिखो। अब मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या है। अब पूछने भी शर्म सी आए साइड वाले से कि क्या करूँ। तो फिर मैंने जैसे तैसे 3 लाइन लिख दी उसमें। अब वो बॉक्स वगैरह फिल करने के लिए बोलता है, हीरो मार्क करने थे, 3-4 कैरेक्टर देखे, सारे मार्क कर दिए। अब पता ही नहीं था, सच में नहीं पता था। अब मार्क करने के बाद जब शीट गई, अगले दिन सुबह सुबह 6:30 बजे फ़ोन आया। मैं बस से आता था, मैं बुलंदशहर से ट्रैवल करता था। तो मैं सुबह 6:30 बजे बस में बैठा था, संदीप सर ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। कहता ये क्या किया तूने? मैंने सर क्या हुआ? बोले तूने 3 लाइन लिखी है, शर्म आ रही है तेरे को बिल्कुल भी, तू बीटेक किया हुआ है ये वो। मैंने कहा सर पता ही नहीं है सर कुछ भी, कैसे लिखते हैं इसमें, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैंने कहा सर अभी सीखूंगा तो मैं कर लूँगा। तो बोले ठीक है। तो जो यहाँ पे बताया गया था, अच्छा एक चीज़ और, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, मैं किसी की वीडियो नहीं देखता था, मैं बिल्कुल नेचुरल था। हो सकता है इसी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया, क्योंकि जो यहाँ पे बताया गया मेरे पास प्री कंसीव नोशन कुछ नहीं था, आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट एसएसबी। तो जो यहाँ पे बताया गया वो मेरे को फर्स्ट इनपुट मिला। जो मेरे को फर्स्ट इनपुट मिला मैंने उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर दिया। हर एक चीज़ जो भी सर लिखवाते हैं हर एक चीज़ ग्रैब कर ली, क्योंकि गालियाँ पड़ती रहती थी तो जाते ही रिवाइज कर लेता था, होमवर्क भी टाइम से आता था। फिर उसके बाद 22 दिन मिले थे एसएसबी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो गया, तैयारी वगैरह करी अच्छे से। न्यूज़पेपर वगैरह पहले से पढ़ता था, बिकॉज डिबेट वगैरह में था तो करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ता रहता था, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही भोंदू हूँ। आती थी चीज़ें कि मतलब क्या हो रहा है देश दुनिया में, बस ये था कि पढ़ने की ज़रूरत थी। तो वो पढ़ी चीज़ें, तो उसके बाद हाँ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। सेकेंड अटेम्प्ट तो फिर हो ही जाता है, तो ठीक है जो भी है। फिर उसके बाद एक और अटेम्प्ट आया बीच में, वहाँ पहुँचे हम जलंधर। वहाँ और मज़ा आ गया। वहाँ ऐसे मज़ा आ गया, मेरा इंटरव्यू पता नहीं कहाँ चला गया था। तो मैं उसमें बतानी चाहिए, फेलियर भी बतानी चाहिए, तो उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। मैंने सर को फ़ोन करा, सर शॉक हैं ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि पिछली बार 5वीं रैंक आई है, तो फिर इट वॉज शॉकिंग फॉर मी एज वेल। तो फिर मैंने पूरे पैरामीटर्स को देखा कि मैं क्यों फेल हुआ। मुझे ये पता लगा, पहला फेलियर था एसएसबी का। तो कहते हैं कि मेरा 12वां अटेम्प्ट है, 15वां अटेम्प्ट है, तो उस दिन मुझे पता लगा कि यार क्या गलती हुई मेरे से जो पहले मैं रिकमेंड हुआ अब नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद पता लगा कि हाँ मैंने उस वक्त मैं स्टूडेंट था, वर्किंग नहीं था, मेरे फ्रेंड्स अलग थे, अब फ्रेंड्स अलग हैं, मेरी कंपनी अलग है, मेरी साइकोलॉजी चेंज हो गई है। मैंने जो चीज़ें करी थी उस वाले अटेम्प्ट में, वो मैंने जो पहले नोट्स बनाए थे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, वो मैंने उसी हिसाब से प्रिपेयर करे थे जो मैंने कॉलेज में करे थे एज अ स्टूडेंट। बट मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मैसेज भी देने जा रहा हूँ, बट उस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं करी थी। मैं उसी को प्री कंसीव नोशन को लेके गया था। फिर मैं दोबारा मैंने सोचा, सर के साथ बैठा, उन्होंने बोला कि चीज़ें चेंज हो गई हैं। उस पैटर्न पे अपने आप को ले गया, सोचा, नोट्स बनाए। इंटरव्यू भी दिखाऊंगा मैं आपको नोटबुक, वो पूरी जो है मैंने दोबारा से फिर बनाई, और इस बार हो गया। और कॉन्फ्रेंस में पूछा था मेरे से कि पहले कितनी रैंक आई थी, मैं सर फिफ्थ आई थी, इस बार कितनी आएगी, मैं सर फर्स्ट आएगी। मतलब इट वॉज लाइक वन ऑन वन कन्वर्सेशन, कुछ नहीं, मैं रुक नहीं रहा था, बता रहा था बस साफ साफ कि पहले कितनी आई, 5 में, सर इस बार फर्स्ट आएगी। देन कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया अंदर, मेरा सब कुछ अच्छा हुआ था इस बार, जीडीओ वॉज गुड एंड साइट वॉज ऑल्सो गुड एंड थर्डली कॉन्फ्रेंस वॉज ऑल्सो गुड। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, सारे क्वेश्चंस उसमें मेरे जो कॉर्पोरेट लाइफ से होते हैं उससे पूछे गए थे, लाइक बता दूंगा बाद में। अब उसके बाद कॉन्फ्रेंस में लाइक एज आई लास्ट इंटरव्यू हुआ सर, उसमें स्पेसिफिकली बताना, हाउ डिड यू हैंडल द जीटीओ टास्क, हाउ डू यू हैंडल साइक क्वेश्चंस, हाउ डू यू हैंडल इंग्लिश, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना, द लास्ट व्हिच यू हैड लास्ट।
ओके सर। सो एज फार एज दिस इंटरव्यू वॉज कंसर्न, तो साइक टेस्ट में मेरा स्टार्टिंग में, अगर डे 2 की बात करूँ, अच्छा हुआ था। मैंने 41 की समथिंग SRTs करी थी, वेट सारे किए थे, SD पहले से प्रिपेयर्ड थी और ब्लैंक स्टोरी प्रिपेयर्ड थी, तो एवरीथिंग वॉज गुड। देन देयर आफ्टर स्टोरीज में लाइक 11 पिक्चर्स जो आती हैं उसमें 11 पिक्चर्स में से 5-6 तो ठीक थी, लेकिन लगातार मेरे में एक पैटर्न फॉलो हुआ था सर, कि 5 पिक्चर माउंटेनियरिंग की आ गई थी। तो इसीलिए, जैसे अभी सर भी दिखा रहे थे शायद एक पिक्चर माउंटेनियरिंग की, तो ऐसा भी हो सकता है कि लगातार एक पैटर्न भी फॉलो हो जाए कि सारी माउंटेनियरिंग की आ जाए। कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई एक एक में 5 लोग हैं, एक में 10 लोग हैं, एक में एक है, तो ऐसे कर करके आपको वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। तो आपको स्टोरी में पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखना है, ये नहीं कि एक ही स्टोरी बनाई और उसी को लिख रहे हो। अब मैं एक स्टोरी माउंटेनियरिंग में 5 बार कैसे लिख देता, मेरे को हर स्टोरी में अलग अलग लिखना पड़ रहा था। तो इसीलिए दिस वॉज अ डिफरेंट इन दिस अटेम्प्ट। Then thereafter, second day was, third day was GTO. GTO was good. फैक्ट्स में दे रहा था सारे, जो भी न्यूज़पेपर के फैक्ट्स होते हैं वो बोलना, और जो फैक्ट्स होते हैं वो बोलना, मतलब वहाँ पे बातें मत करना, बिकॉज बातें तो सब करते हैं वहाँ पे। कोई इमोशनल टॉपिक आता है, जैसे इस बार एक टॉपिक आया था वहाँ पे कि न्यूक्लियर फैमिली इज गुड और जॉइंट फैमिली इज गुड, और तो उस टॉपिक पे थोड़े से इमोशन पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा डालने थे, बिकॉज GTU सर वॉज फोकसिंग कि इसमें इमोशंस डालो, अपनी जो फैमिली लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उस पर बात करो। यहाँ पे न्यूज़पेपर पे बात मत करो, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात मत करो। जैसे मैं थोड़ा डेटा दे रहा था, और क्यों मेल्स को विलेजेस से शहरों में आना पड़ा, फिर फॉलोड बाय विमेंस भी उनके पीछे पीछे आए, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ा, और जॉब्स भी जो विमेंस के लिए हैं वो ज़्यादा होने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका जेनेसिस क्या था, वो पूरी एक हिस्ट्री से आप स्टार्ट करोगे तो एक अच्छा GD आपका जाएगा। लेक्चरेट में मैंने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी उठाया था, तो विच वॉज अ, सर से बात हुई थी, ही सेड कि इट वॉज अ गुड टॉपिक। देन देयर आफ्टर GTO टास्क आर कंसर्न, तो सब में वही अंदर या बंदर वाली बात, वो हो गया ना सर, वही अंदर या बंदर वाली बात। तो अंदर ही रहना हमेशा, फर्स्ट पे ही कोशिश करना कि फर्स्ट पे रहो, सेकंड पे रहो, इन दोनों यही इनिशिएट करो तो अच्छा है। आइडियाज देना, मेरे में क्या था कि सर ने मेरे को GTO सर ने पीछे कर दिया था, लाइक इन PGT1 PGT2 तो मैं आगे था, बट 3-4 में उन्होंने पीछे कर दिया था, बोले आई वॉन्ट टू टेक अदर्स आइडियाज एज वेल। सो उसमें मैं पीछे था, बिकॉज सारे आइडियाज ही मैं दे रहा था। फिर HGT में भी, पहले HGT में मेरे को पहला जो स्ट्रक्चर था उसको मैंने क्लियर करा, तो बोले कि तुम पीछे चले जाओ, तो मेरे को पीछे कर दिया था। तो फिर जो बाकी ग्रुप था उसको आगे करा, उनसे पूछा। तो माई GTO सर वॉज वेरी गुड, ही वॉज गिविंग चांस टू एवरीवन। ऐसा नहीं था कि कोई, ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है वहाँ पे। इट वॉज लाइक ही वॉन्टेड टू नो एवरीवन। ही सेड कि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी दिक्कत परेशानी है, कोई तैयारी कैसे करके आया, कैसे करके आया। तो आई वॉन्ट टू नो एवरीवन, आई वॉन्ट टू, ही हिज वर्ड्स वर कि आई वॉन्ट टू रिकमेंड एवरीवन। मेरे को सबको रिकमेंड करना है, तो मेरे को सबको देखना भी है, शायद हो सकता है कि किसी वजह से आगे ना आ पा रहा हूँ। तो दिस वॉज अ थिंग। देन FGT वॉज ऑल्सो गुड। कमांड टास्क में सारा मूवेबल स्ट्रक्चर्स मिले थे, कोई रोटेटिंग वाले थे, और मतलब मुझे तो इजी लग रहा था, ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। और यस, लास्ट में मेरे को बुलाया था कमांड टास्क में, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मैंने 9 करे थे। वर्टिकल रोप पे मोटा था, अभी तो मैं पतला हो गया, 85 का था अभी 20 दिन पहले। तो रस्सी पे लटक गया था मैं, वर्टिकल रोप पे चढ़ नहीं पाया था। तो उसमें दिक्कत हुई थी, तो एक ऑब्स्टिकल नहीं हुआ था मेरा, 9 ऑब्स्टिकल मैंने किए थे। सो दिस वॉज इट सर। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू अच्छा हुआ था। इंटरव्यू में वही सारे क्वेश्चंस जो CIQ में होते हैं जैसे करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि अपना PIQ को अच्छे से पढ़ लेना। मैं तो ये कहता हूँ कि PIQ हर चीज़ की जेनेसिस होता है, और PIQ को पढ़ लेना, एक एक वर्ड को मार्क कर लेना, और उससे जो भी आपका एक काउंटर क्वेश्चन बन रहा है वो कर देना। जैसे मुझसे मीनिंग ऑफ नेम पूछ ले कॉन्फ्रेंस में, फिर मीनिंग ऑफ नेम मैंने बता दिया, बोले उसको संस्कृत में बताओ उसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद बोला कि इसका जेनेसिस कहाँ से है, तुम्हारा नेम का जेनेसिस कहाँ से है। तो मैंने बोला कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब श्लोक बता रहे थे, या जब महाभारत के टाइम पे, तो उस टाइम पे सार्थक वर्ड का यूज़ किया था कि तुम्हारे जो पार्टिसिपेशन है किसी वॉर में वो सार्थकता से होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम अपने भाइयों को देख रहे हो। तो बोले कि आर यू श्योर कि महाभारत से है? मैंने कहा यस सर। तो बोले ओके। देन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे चेक हो रहा होता है, जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने सोचा, मैंने कहा सर मैं थिंक अबाउट इट। बोले यस यू में। तो 20 सेकेंड बाद मैंने 10 सेकेंड बाद ही बोल दिया था कि सर एक तो कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है कि यूनिफॉर्म नहीं होती है कोई भी।
यही सेम आजकल कॉलेज में भी होता है, तो मैंने वही सेम चीज़ बोल दी कि देर इज़ नो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म फॉर द सेम। द हायर डेजिग्नेशन पीपल आर वेयरिंग लाइक द फॉर्मल यूनिफॉर्म, बट लोअर वन आर having their funky and the cool clothes that is going on today. तो मैंने कहा सर दैट मस्ट बी चेंज। सेकेंड थिंग इज सर लंच टाइम, देर इज नो लंच टाइम इन कॉर्पोरेट, लाइक कोई 2 बजे जाता है तो 4 बजे आ रहा है। तो कुछ कंपनीज में ट्रैकिंग होती है, बट मेरे में नहीं थी, तो मैंने अपने का बताया। तो लाइक सम गो टू 2 o'clock एंड दे कम बैक बाय 3:30, सो इट इज नॉट राइट। सो इट मस्ट बी दैट 20 minutes or 30 minutes, so that we can focus more on the work. So these things can be done. तो बोले So ओके what advice will you give them now? So they are finishing their university. ओके। So what will be your advice to the students to prepare? How they should prepare this? In my opinion, knowledge, like as sir says that ki knowledge comes from the that confidence comes from the knowledge. If you are see, पहले तो ना अपने आप को जो सच्चाई है वो देखो। हम ना कभी कभी ये करते हैं कि यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को मैं टॉपर था, मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, आई एम एनडीए, आई एम सीडीएस, आई एम फलाना ये वो। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर की ट्रेड्स क्या हैं, क्या मेरे अंदर वीकनेसेस हैं, हम वो भूल जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कभी कभी कि नहीं मेरे को तो सब कुछ आता है। अपने आप से ना सच बोल दो एक दिन कि यार तेरे को ना जीडी भी नहीं आती, और तेरे को लेक्चरेट भी नहीं आता, तेरे पे न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं आता, और तेरे पे नॉलेज भी नहीं है। जिस दिन आपने वो चीज़ लिख ली, सामने चिपका दी वॉल पे, रोज उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दो। और प्रैक्टिस तो मतलब सर मुझे अब ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता, बट जो हमारा टेट वेट और ये सब हम करते रहते हैं ना बार बार, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है, बट वो मार्क्स लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट आपको ना एक होल पर्सनैलिटी देख रहे हैं। मैं जीटीओ सर का एक कोट बताता हूँ जो मुझे वहाँ पे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि हम एक ऐसा ऑफिसर देख रहे हैं जो अपने फेलो सीनियर के साथ बैठ के ना एक डिसीजन प्लानिंग कर सके। तो मुझे कोई बहुत हाई लेवल थिंकिंग वाला बंदा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जो सीनियर के साथ जब बैठा है साइड में, तो उसके जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए। सीनियर उसको अपने साथ बैठा के कॉन्फिडेंट महसूस करे। तो अगर ऐसा होगा तो जनरली ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर नॉलेज होती है और कॉन्फिडेंस होता है, और आप कह सकते हो कि हाँ सर मैं कर लूँगा, आप मुझे भेज दीजिए, आई डू इट। और आपके अंदर आपके पास भी एक पूरा माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ऐसे करूँगा। यस। So thank you so much, Safir, for that okay. So takeaways from it is develop lot of knowledge, general awareness, and good skills. Then SSB will be key. So let's present you with the third time. थैंक यू।